Hello, Mataji, you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. The Supreme Court of India on Wednesday heard petitions challenging the special intensive revision of electoral rolls in various states of India. The Apex Court on Tuesday had issued a notice on a plea filed by MDMK founder and former Rajya Sabha MP Vaiko challenging the decision of Election Commission of India to conduct the special intensive revision of electoral rolls in Tamil Nadu. It further asked state high courts to keep in abeyance any proceedings on petitions challenging the exercise in Tamil Nadu and West Bengal. Later during the day, advocate for CPM G. Prakash, updating in the petition in Kerala, said they are challenging that order on one aspect, and moreover the local body elections are on. These election results will be published on the 13th of December. In between, if SIR is also going on, that will create a lot of problems from the government employees who are working in this field. Therefore, there should be some time gap for this, and this has to be extended after that. Meanwhile, IUML MP and advocate Haris Biran stated that the state of Kerala itself has approached the Supreme Court saying that they want a deferment of SIR. The Supreme Court will hear the matter for an interim order on the 2nd of December. The Union Cabinet on Wednesday approved a scheme to promote manufacturing of rare earth permanent magnets with an outlay of Rs 7,280 crore. The scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets was approved at a cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav told reporters that the scheme would promote manufacturing of rare earth permanent magnets. The aim is to create capacity of 6,000 MTPA metric ton per annum. Rare earth magnets are used in major industries including electric vehicles, aerospace, electronics, medical devices and defense. The scheme envisions allocating the total capacity to 5 beneficiaries through a global competitive bidding process. Each beneficiary will be allotted up to 1,200 MTPA of capacity. The total duration of the scheme will be 7 years from the date of award, including a 2-year gestation period for setting up an integrated rare earth permanent magnets REPM manufacturing facility and 5 years for incentive disbursement of the sale of REPM. Former Chief Justice of India B.R. Gavai has sharply criticized the use of bulldozers by state authorities to demolish the homes of individuals merely accused of crimes, calling it an alarming example of the executive acting like a court and inflicting collective punishment without due process. Recalling the Supreme Court's intervention in demolition matters, he said that the court stepped in only after finding that authorities were acting in excess, razing homes without notice of legal procedure. Such actions, he said, violate not just the rights of the accused but also the fundamental rights of parents, siblings, children and all other innocent occupants. This is nothing but taking the law into one's own hands, he remarked. He noted that the Supreme Court had given citizens the liberty to approach the high courts immediately in cases of unlawful demolition. But not beyond a particular limit. But sir, bulldozers are still bulldozing at many places. Yes, so therefore we had given and liberty to the citizens to knock the doors of the high courts wherever there was a violation. And we had also expected that wherever such a grievance is brought to the notice of the court, we had laid down stringent measures that the person who is indulging in violation of the orders of the court would be guilty for the contempt of court. And not only that, we have also directed that such demolished house, after following the proper procedure, is found to be illegally demolished, then the government will have to reconstruct it and recover the amount from the persons who are guilty. So many critics see this as a overreach, and sometimes even bypassing the executive. So therefore, at times, as I said, like we did in the demolition judgment or the bulldozer justice, where we found that the executive was acting in excess, executive was acting as a judge in their own cause, merely because a citizen was found to be involved in a criminal act. His houses were demolished. And we found that this would amount to not only violating his rights, but the rights of inmates of the house, his brothers, sisters, mother, father, children. And that was like taking a law into hand. And we also held that the right to shelter is a fundamental right, and therefore laid down guidelines. So that is a case wherein I would it's not proper for me to justify my judgment, but I think that would be a case where a judicial activism should be promoted, but not beyond a particular limit. But sir, bulldozers
following the death of a 16-year-old national level basketball player after the basketball pole fell on his chest. His grandfather claimed that a grant was received in 2023 for the repair work, but they kept on delaying the repair work. The pole was damaged at a few centimeters below ground level. It was not visible. The rust was not visible because of the paint. A grant of rupees 11 lakhs was received, but no work was undertaken. The deceased had played nationally 4 times. अप्रूवल ऐसे है कि 2023 में ग्रांट आई थी इनके उसकी रिपेयर की, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, ये कोच भी हैं उसके, तो उन्होंने कहते रहे कि अभी कराएंगे, लेकिन इसकी डेथ होनी थी और कुछ नहीं, ऐसे गिरा है। आपने शायद इसका वो देखा होगा, तो कोई चांस ही नहीं मिला। और नेशनल लेवल 4 बार का नेशनल खेला हुआ लड़का है और 17 साल की एज में ये नेशनल लेवल का प्लेयर था। इतने एफर्ट्स किए इसने, डेडिकेटेड प्लेयर था, अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था और बच्चे दूसरे पोल पे कर रहे थे, ये अकेला उस पोल पे कर रहा था। और एक बार रिंग के पास गया, रिंग नहीं मिला इसको, दूसरी बार जब किया तो इसने जो ही रिंग पकड़ा पोल उसके ऊपर। अच्छा, हार्दिक ने कभी आपको इसके बारे में बताया कि वहाँ पोल खराब है? नहीं, किसी ने भी नहीं, दिक्कत है? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। हार्दिक ने तो क्या, और किसी ने भी नहीं बताया कि भाई इसके ये ऐसे ये जर्जर हालात में है, क्योंकि वो जो ग्राउंड लेवल था ना, उसके थोड़ा सा सेंटीमीटर कुछ नीचे था जो दिखाई नहीं दे रहा था। पेंट पे किया हुआ था तो पेंट के अंदर से जंग दिखाई नहीं दिया। ऐसा ही बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कोच से यहाँ। हाँ, 12 लाख रुपए दिए थे, वो आगे थे इनके पास ही, लेकिन वीडियो ने और इनकी कोई खास ऑफिशियल ने इस पे ध्यान नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन भी दी खिलाड़ियों ने कि भाई इसको ठीक करा दो, ये काफी पुराने हो गए हैं और ये हादसा हो सकता है, लेकिन कोई वो नहीं किया। पैसे किसके पास आने थे? वो तो डेवलपमेंट उसके पास, जिला परिषद में आने थे, DRDO के पास, तो उसके पास आते थे पैसे तो काफी दिन से पहले से ही। अच्छा, यहाँ कभी कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, कोई कोच, कोई ना, ऐसे था यहाँ पहले नर्सरी दी गई थी बास्केटबॉल की और कबड्डी की, लेकिन वो नर्सरी इस साल से वो नर्सरी भी खत्म कर दी गई, क्योंकि हमारे जो गांव में है 50 प्लेयर ऐसे हैं, इनमें 14 तो नेशनल लेवल के प्लेयर रहे और बाकी स्टेट लेवल पे तो पता नहीं कितने प्लेयर थे। यहाँ तो जन्मजात बास्केटबॉल है इनके DNA में। फिर खेल अधिकारी, जिले का कोच जो बास्केट का है? ना, कोई नहीं आता था। ये जो अपने सोशल वर्कर है, जिस तरह से पुराने खिलाड़ी हैं तो यही खिलाते थे और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं आ रहा था। क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग करते हैं कि भाई नर्सरी भी होनी चाहिए, जो इतने प्लेयर देता है कि नेशन के लिए, तो कम से कम एक नर्सरी तोड़ने की बजाय यहाँ तो और अपग्रेड करनी चाहिए थी कोई नर्सरी, और सीनियर के लिए पहले नर्सरी दे रखी थी, वहाँ कोच लगा रखा था, उसको पेमेंट मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस साल से तो वो भी खत्म कर दी। वो कहते हैं कोरम पूरा नहीं था। कोरम यहाँ भी पूरा नहीं है तो कहीं नहीं होगा, यहाँ भी कोरम पूरा नहीं है। इतने खिलाड़ी लिए हैं, आप 14 नेशनल प्लेयर थोड़ी कम लगे, एशियाड खेले हुए हैं 2 तो हमारे गांव के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो यहाँ भी अगर कोरम पूरा नहीं होता तो मेरे हिसाब से तो कहीं पूरा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कौन जिम्मेवार है इस हादसे का? देखो, ये तो आप भी अंदाजा लगाओ कौन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है, और तो कौन होगा। यहाँ तो गांव में चंदा इकट्ठा करता है, ये यहाँ स्पोर्ट्स यूथ वो बना रखी है, वो चंदा लोगों से इकट्ठा करते हैं और तब ये चला रहे हैं। क्या मांग करते हो? हम तो ये मांग करते हैं कि भाई इतने प्लेयर जो प्रोड्यूस करता है गाँव, वहाँ तो बहुत ज्यादा। किसी पे कार्रवाई की मांग करते हो? कार्रवाई तो अब देखो किस पे कौन है, हम तो कह नहीं सकते, लेकिन ये तो गवर्नमेंट को भी दिखाई देता है कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे कहने से ना को करे, ना हमारे कहने से कोई कुछ होना है, तो ये तो गवर्नमेंट में ही सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें, इसके क्या इसके वो रेमेडीज होंगी। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई हम कह देर कर दें। तो ये तो आप देखो ना, सब आप पत्रकारों के सामने भी और सभी के सामने ये हादसा हुआ है, और किस तरह से हुआ है इसकी रेमेडीज तो गवर्नमेंट ने निकालनी, हमने तो नहीं निकालनी। एडमिनिस्ट्रेशन का ही सारी जिम्मेवारी बनती है
अब हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने लेवल से जब इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, पैसे भी देते हैं, बच्चों को खिलाते भी सारी तरह की करते हैं, तो हम किसको क्या कहें। हम तो गवर्नमेंट नहीं दे रही, तब भी हमने कोई वो नहीं भाई, हम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहेंगे, और जब तक हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। यहाँ 50-60 बच्चे खेलते हैं, इससे ज्यादा क्या नॉर्म होगा, आप बताओ। उसे इंडिया प्लेयर बनाना था, वो सबसे अच्छा खिलाड़ी बने, इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करे। तो सपना भी यही था, तैयारी भी करे तो 2026 के लिए हुआ, यूथ खेलने के लिए इंडिया की तरफ। अभी सिलेक्शन था उसका? अभी हाँ, उसके पिछली उसमें था, उसकी उम्र के कारण उसे, उसकी उम्र 2 साल कम थी, तो पिछली इंडिया खेलता हो। तो अगली 2026 में उसका नाम आने वाला था, इसलिए वो तैयारी कर रहा था। लगातार 6 लगातार नेशनल खेल रहा है, अभी 7वां नेशनल खेलने के लिए उसे दिसंबर में जाना था, उसी के लिए आया है। 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं, एक अंडर 14 में है, एक अंडर 17 में आती है। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे गेम खेलते हैं, आपने बास्केट नहीं खेला? क्योंकि शुरू से ही मैंने बचपन से ये देखिए, यहाँ पर रिंग लगा रखा है, देखिए स्कूल में किसी ने लगाया हुआ है, उसके लिए मुझे कुछ न कुछ खेलने की चीज लाता था, तो मैं रिंग ले आई, इसलिए यहाँ बास्केट खेलने लगे। तो खेलते खेलते फिर इनका जी करने लगा, तो मैं इनको भेज दिया वहाँ पर ग्राउंड पे, तो मन करने लगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे, तो लगातार जाने लगे, और मैंने उन्हें कहने की जरूरत नहीं, फिर तो दोनों भैया पहले वो आरती खेलने लगा, उसके बाद वो अपने खुद कामयाब हो गया, तो अपने भाई को भी लगा, मैं अपने भाई को भी कामयाब करना चाहता हूँ, दोनों भाइयों को एक साथ। अच्छा, जिस तरह का हादसा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, जिन्होंने इसकी देखरेख नहीं की। मैं तो मुख्यमंत्री से वो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों का ध्यान दें, ताकि आगे खिलाड़ी आगे चले, कोई ऑनर खिलाड़ी ना खोएं, इससे माता पिता आगे ऐसा दुख ना हो। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही करे। अच्छा, वो हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में गए थे, वो कहते हैं कि वो गाँव वाले खुद ही अपने लेवल को इसको संभालते हैं, गवर्नमेंट का नहीं है इसमें। गाँव वाले संभालते, वैसे तो जब कोई सरकारें नहीं करेगी तो और क्या करेंगे, बच्चों को तो खिलाना है, कहीं भी खिलाएंगे, प्रशासन नहीं करेगा तो फिर बच्चों को खिलाना बंद कर दिया क्या? तो इसलिए तो गाँव वाले सपोर्ट करेंगे, और क्या करें, अपने बच्चों को आगे निकलना है, वो भी देश के लिए निकलना है। हम देश के लिए भी सोच रहे हैं, हमारे लिए नहीं सोच रहे, देश के लिए भी सोच रहे हैं, ये देश के लिए खेलेगा, तो देश का भी नाम रोशन होगा, जब वो खेल गएगा तो हमारा अकेले का नहीं होगा। क्या कभी पहले उसने ऐसा बताया कि इस तरह की स्थिति है वहाँ? किसने? पोल खराब है, हार्दिक ने बताया? नहीं, किसी ने क्या है, उसको जो हर बार जो गेम कराते हैं साल, हम उसी पर रोगन करा देते थे, वो नीचे से गड़ा हुआ था, जो दिखाई नहीं दिया था, ऊपर से हम हर चीज को जो दिखता था उसे तो हम ठीक करा देते थे, लेकिन जो नीचे से वो दिखाई नहीं दिया हमें। तो इस तरह की जो घटना है, निश्चित तौर पर अच्छा होने वाली है। क्या सपने थे आपके? सपने तो बहुत ही बड़े थे, वो भी हर बार कहता था, पापा मैं तेरे को ऐसी जिंदगी जुआऊंगा जो पूरी दिन जुआ सकता है, ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा, गाँव में कहेंगे कि ये हो हार्दिक का पापा, कोई ऐसा प्लेयर नहीं हुआ, उसको ऐसा प्लेयर बनाओ, पापा मैं इंडियन, मैं NBA के भी तैयारी करने उसे, वो अकेला जाकर भी तैयारी करता, दोपहर को अकेला 2 बजे भी जाता था, अकेला भी मेहनत मार के आता था, इतनी लगन थी उसमें। इस घटना के बाद सुन हो गया, सब सपने चूर हो गए, जो देखे थे, सोचे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, वो कहते थे पापा मैं जीत के आऊंगा तब मेरे को लेकर आओगे, देव हाँ कितनी दुनिया आएगी मेरे पास, ये हार्दिक जीत के आया है, तो सब सपने चूर हो गए। क्या मांग करते हो? और ये कहते हैं आगे हमारे साथ तो जो हो चुका है, गांव के जो आगे किसी भी है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, गाँव कहाँ बच्चों किसी का तो ऐसा ना हो। हाँ, जो हमारा तो चला गया तो चलेगा, वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तो जो अच्छे प्लेयर हैं ताकि आगे ना खोस के उनके लिए अच्छी सुविधाएं दें, मौके पर उन्हें जो सुविधा चाहिए वो दें, ताकि हम देश को अच्छे प्लेयर दे सकें। Students stage a protest at Vellore Institute of Technology, College of Engineering located in Madhya Pradesh's Sehor, allegedly over having problems with the quality of water and food at the college hostel. According to reports, the students marked their protests late Tuesday night, which later turned violent, resulting in vandalism of college property and setting vehicles on fire. Sub-Divisional Magistrate Ashta Nitin Kumar Tel told reporters the students had problems with the quality of food and water, as a result of which students held some agitation. There were some rumors of death due to jaundice, but there is nothing like that. He said that they are also collecting samples of food and water so that whatever shortcomings there can be fulfilled.
प्रदर्शन हुआ, तो आप क्या स्थिति है और क्या मामला था, क्या सामने निकल के आया सर? बच्चों को भोजन और खाने को मतलब पानी और खाने की समस्याएं थी, गुणवत्ता को लेकर, उसको लेकर बच्चों ने कुछ एजुकेशन क्लास किया था और ऐसी कुछ अफवाहें थी कि कुछ बच्चों का पीलिया के कारण जलानी भी ऐसी अफवाहें थी, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जैसा कि हमें यहाँ प्रशासन ने बताया है। और बच्चों की समस्याओं का जो भी है उसका हम समाधान करा रहे हैं। फूड और पानी के सैंपल हम लोग कलेक्ट करा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा करा सकें। आपके प्रबंधन से भी बात हुई, क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या समाधान है? नहीं, अभी कोई समाधान नहीं, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं इस पर, तो ये अंडर प्रोसेस है, इसको हम करा रहे हैं। Meanwhile, the state Congress chief Jitu Patwari expressed concern over the incident, saying that the state government should conduct a detailed investigation into the matter and punish those found guilty. The Congress leader added that the chief minister should wake up and instead of targeting Congress or the opposition, he should discharge his duty, conduct a thorough investigation into the VIT college incident and take action against those found guilty of the matter. VIT यूनिवर्सिटी की घटना सामने आई है, ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल जिसमें है, अगर बच्चों को सही खाना नहीं मिले, सही पानी नहीं मिले, रहने की व्यवस्था नहीं मिले और बड़ी बड़ी फीस मिले, तो ये सरकार को, खासकर शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को इस बात की देखरेख करनी चाहिए। अगर हॉस्टल्स में खाना खराब मिल रहा है, ड्यूटी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की मौत हो रही है खाने पीने से या खराब पानी पीने से या खराब खाना खाने से, यानी कितनी अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री जी जागो और कांग्रेस को या विपक्ष को गाली देने के बजाय आपका धर्म निभाओ, VIT की पूरी जांच करो और जो दोषी है उसको सजा दो। कई बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं और जानकारी आई कि कैजुअल्टी भी हुई है कुछ। ये जो भी है जांच का विषय है और मैं मानता हूं कि जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, पनिशमेंट यूनिवर्सिटी के प्रशासन को करना चाहिए। Meteorologists are monitoring a low-pressure system forming over the Indian Ocean, which is showing clear signs of intensifying into a major cyclonic storm. The Indian Meteorological Department has confirmed that if the system continues to strengthen and reaches the official threshold for cyclones, it will be designated Cyclone Senyar. The name Senyar, meaning lion, was proposed by the United Arab Emirates as part of the North Indian Ocean Regional Cyclone Naming System. On Wednesday, IMD Ranchi Director Abhishek Anand said that the temperature in Jharkhand, Ranchi may fall by another 1.5 degree by tomorrow morning. It will rise by 2 to 4 degrees again in the next 2 to 3 days. He explained that this is because two systems are developing in the South Bay of Bengal adjoining the Indian Ocean. One of these systems is in northeast Indonesia, where it has intensified into Senyar cyclonic storm. A low-pressure system has formed in the southwest Bay of Bengal. It is possible that it will intensify in the next 24 hours. जैसा कि हम लोगों ने पूर्वानुमान दिया था कि पिछले 2 दिनों में पारा जो 3 से 4 डिग्री गिरेगा, तो पारा गिरा है और अभी आज मैं बात करूँ तो 1-8 डिग्री और पारा आज भर में गिरने की संभावना है। आज भर का मतलब हो गया कि कल सुबह में मिनिमम टेम्परेचर कल सुबह में जो रियलाइज्ड होगा 26 तारीख का, तो वो कल सुबह 27 को सुबह में रियलाइज्ड होगा। तो 28 तारीख सुबह से अगर हम लोग बात करें तो फिर से जो न्यूनतम पारा है अब उसको बढ़ने की संभावना है और अगले 3 दिनों में वो 2 से 4 डिग्री फिर बढ़ेगा। और उसका मुख्य कारण यही है कि आप मेरे पीछे जो एनिमेशन देख रहे हैं सैटेलाइट में, तो 2 सिस्टम इवॉल्व हो रहे हैं आपका साउथ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग इंडियन ओशन में, जिसमें से एक जो सिस्टम है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया में है, जो कि चक्रवाती तूफान सेन्यार में तब्दील हो गया है। उसके अलावा एक और जो लो प्रेशर सिस्टम है वो आपका साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है और अगले 24 घंटे में उसके भी प्रबल होने की संभावना देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत इसका असर देखने को मिलेगा। जो पूर्वैया हवा है, ईस्टर्लीज है बंगाल खाड़ी से, वो आएंगी और हम लोग देखेंगे कि 28 तारीख से ही थोड़ा बादल आने लगेंगे, 29 में थोड़ा और गहराएंगे, 30 में और आने वाले दिनों में थोड़ा और बादल गहराएंगे। उसको देखते हुए अभी तत्काल में तो मतलब अगले 5 दिनों में तो वैसे बारिश की संभावना नहीं है या बहुत कम है, बट 29-30 में 1 तारीख में अच्छे बादल झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे और जो मिनिमम टेम्परेचर है बादलों की वजह से बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है वो कितना देखिए अभी में जो
टेम्परेचर है, अगर हम लोग पूर्वी भाग को छोड़ दें, मतलब संथाल और कोल्हान को छोड़ दें, तो अधिकतर जगहों में जो पारा है वो सेंट्रल एरिया में 10 के आसपास में जा रहा है, और नॉर्थ वेस्ट झारखंड एडजॉइनिंग जो वेस्टर्न झारखंड है वहाँ पारा 10 से कम भी है। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पलामू में जो पारा है 8.2 डिग्री सेल्सियस गया हुआ है, और रांची की बात करें तो 9.1 डिग्री सेल्सियस है। तो पलामू ये सब में थोड़ा सा हल्का पारा और गिरने की संभावना है, और रांची में पारा आज के दिन में उतना बहुत बड़ा बदलाव करने, उसी लगभग या आधा 1 डिग्री ऊपर नीचे के आसपास में ही संभावना है। तो कल के बाद से, परसों से 28 सुबह से फिर से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेगा, और कुछ बादल का आवाजाही आपको देखने को मिलेगा, और तो वो 29-30 में थोड़ा सा गहराएगा। ऐसी अभी संभावना हम लोग को देखने को मिल रही है। और अगर मुख्य शहरों का तापमान के बारे में हम लोग बात करें तो रांची में न्यूनतम तापमान 9.2, जमशेदपुर में 11.2, और अगर बात करें डाल्टनगंज में 8.2, बोकारो में 9.1, चाईबासा में 11.6 मुख्यतः रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर बात करें तो गुमला में जो सबसे कम न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और ये कृषि विकास केंद्र गुमला में जो हमारा ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम है उसके द्वारा ये नापा गया है। तो यही देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा 1-2 डिग्री पारा कम देखने को मिलता है। जंगली क्षेत्र हो गए या खुले मैदानी क्षेत्र हो गया, जल स्रोत के आसपास वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पारा थोड़ा सा शहरों की अपेक्षा 1-2 डिग्री कम देखने को मिलता है। अगले 2 दिनों तक ठंड ज़्यादा रहेगी, उसके बाद पारा हाँ 28 तारीख अगर आप बात करें तो मतलब 28 तारीख मॉर्निंग से ही आपको थोड़ा सा जो पारा है वो हल्का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। न्यूनतम पारा 29-30 में ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, और बादलों की आवाजाही देखने को। West Delhi Police Operation Kavach 11.0 yielded significant results with 166 arrests and 627 detentions in a 24-hour crackdown. The operation targeted various hotspots, resulting in substantial seizures and recoveries, officials said on Tuesday. According to police, 71 teams were mobilized and 159 intelligence-based raids were conducted across hotspots, slum belts, industrial clusters, liquor routes, isolated pockets and night-dominated crime-prone stretches. The action involved continuous narco tracking, mobile patrolling, human and technical surveillance, real-time coordination and surprise inspections. The operation was executed from 6 p.m. on November 24 to 6 p.m. on November 25 following directions from police headquarters. दिल्ली के माननीय पुलिस आयुक्त महोदय श्री सतीश गोलचा साहब के निर्देश अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में पूरी दिल्ली पुलिस में एक कवच 11.0 कवच 11 का संस्करण अभी पिछले 24 घंटे में इसको कैरी आउट किया गया, जिसके तहत पूरी दिल्ली में करीब 1566 जगहों पर 908 पुलिस की टीम ने रेड किया, जिसमें ड्रग तस्कर और जिसमें एक्साइज के जितने भी जो क्रिमिनल्स हैं शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें करीब 80 नार्को ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया गया और 76 केस नए दर्ज किए गए, जिनसे कुल मिलाकर 282 ग्राम हेरोइन, 19 किलो से ज़्यादा गांजा, 2 किलो से ज़्यादा ओपियम, 2 किलो से ज़्यादा चर्स और 2.5 किलो के आसपास ट्रेमाडोल की रिकवरी हुई है, और इसके अलावा 1 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी भी इन लोगों से रिकवर हुई है। इसी कवच 11 के संस्करण में 273 आदमी एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे करीब 41,000 से भी ज़्यादा क्वार्टर्स की रिकवरी हुई है, जो क्वार्टर बोतल होती है उसकी रिकवरी की गई है। आर्म्स एक्ट पर भी कार्रवाई करते हुए इसमें 99 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 100 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 1 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 13 कंट्री मेड पिस्टल, 6 लाइव कार्ट्रिज और 87 नाइफ इनसे रिकवर हुए हैं। इसकी बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा कि एमसीडी के बाई इलेक्शंस हैं, इसके चलते एक्साइज एक्ट पर इस बार और जो एक्साइज के जितने मुकदमे थे उन पर और आर्म्स एक्ट पर काफ़ी फोकस था कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो एमसीडी के बाई इलेक्शंस के चलते बहुत बेहतरीन इसमें काम हुआ है और
कुल मिलाकर 1500 से ज़्यादा पब्लिक ड्रिंकिंग के कैलेंडरे भी इसमें बने हैं, जिसमें लोगों को बाउंड डाउन किया है। टोटल जो नंबर है लोगों को बाउंड डाउन किया गया इस बार वो 7745 लोगों को या तो अरेस्ट किया गया या बाउंड डाउन किया गया है। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो दिल्ली एमसीडी के बाई इलेक्शन है उससे पहले माननीय सीपी साहब के आदेश अनुसार इसको किया गया है। इसमें जो प्रोमिनेंट जो 2-3 अच्छी रिकवरी हुई हैं जो जिलों में हुई हैं उनको मैं एक बार वर्णित करना चाहूँगा। एक एएसआई परमजीत है, ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। उसके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बेस पर उसने 2.5 किलो से ज़्यादा चर्स एक होटल में जो प्रयुक्त हो रही थी उसको रिकवरी को अंजाम दिया है। और 2 एक्यूज आदमी जो हैं सुजान गुरंग और दीप जंग लामा, इन दोनों को इसने गिरफ्तार किया है। दूसरी अच्छी रिकवरी ईस्ट जिले की है, जिसमें हेड कांस्टेबल सनी राठी करके एक ऑफिसर हमारा है, जिसने 2 आदमियों को पकड़ा है जो दोनों बरेली के रहने वाले हैं। उनसे 2 किलो के आसपास ओपियम और 109 ग्राम हेरोइन रिकवर की गई है और गाजीपुर थाने में इस बारे में केस दर्ज हुआ है। तीसरा जो अच्छा केस है वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें हेड कांस्टेबल अनिल सांगवान है, वो ANTS में वहाँ पर पोस्टेड है। उसने राजेश नाम के एक आदमी को कीर्तिनगर थाने में एप्रीहेंड किया है और उसके पोजीशन से 3 किलो 671 ग्राम गांजा उससे रिकवर किया है। एक हमारी जो ANTF की टीम है ACP राजकुमार के नेतृत्व में, उसने 2 किलो के आसपास 2 किलो से ज़्यादा चरस जो है वो रिकवर की है और उसमें एक आदमी को अरेस्ट किया है और 2 आदमी को आइडेंटिफाई किया, उनको ड्यू कोर्स में एप्रीहेंड किया जाएगा। इसमें दिल्ली पुलिस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच रहती है। जो भी सप्लायर है, मेन सप्लायर हैं और जो नीचे रिटेलर हैं वहाँ तक पहुँच बनाई जाती है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के भी सारे एंगल इन्वेस्टिगेट करके जो भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होने लायक बनती है, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्न की गई है, उसको कन्फिस्केट किया जाता है। इसमें मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि जहाँ भी ड्रग की बिक्री कंफर्म जहाँ पर ड्रग की बिक्री की किसी को सूचना मिलती है तो वो मानस हेल्पलाइन जिसका नंबर है 1933 1933 उस पर शेयर करें और दिल्ली पुलिस को भी और क्राइम ब्रांच को भी एट लार्ज इनको हेल्प करें, मदद करें इस ड्रग के मेनेस को रोकने के लिए। धन्यवाद। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.